Very good evening, aspirants. Today's topic is very important for exam point of view. Like today we are discussing 80196 microcontroller, which is a very popular microcontroller in 16-bit microcontroller family, and it is also important as per the embedded processors because it is having a Princeton architecture, as well as it supports some features of hardware architecture. In Princeton architecture, this is a very important thing is that we are having RALU, Register Arithmetic Logic Unit. By this register arithmetic logic unit, we can perform the arithmetical and logical operation between two registers. In place other microcontroller or processor, we have to use a accumulator as a fixed one operand. Now other than it is having the functionality that it is have separate code and data memory for our uses. Other than it is having 16-bit operation capability in a single instruction cycle. Now it is having own chip ADC and DAC like PWM. तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके ऑपरेशनल फीचर्स हैं. इसके अलावा ये हमें सपोर्ट करता है, हमें प्रोवाइड करता है 5 पोर्ट्स के साथ अवेलेबल होता है और हर पोर्ट के पास 8 बिट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट मोड्स. उसको हम आगे देखेंगे. नाउ फर्स्ट हम अगर अभी भी किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज शेयर दीज वीडियोज़ because it is very helpful for you and other candidates who's preparing the microprocessor, microcontroller and embedded processors. Now I just switch to the architecture. In different books there are different architectures, but they all are having fixed components inside it like this. Here also are 5 ports like P3, P4, P2, P1, P0, HSI, HSO, timer 1, timer 2, serial ports, watchdog timer, PWM, control unit, and arithmetic logic unit and SFR, internal memory range, IR, ID and so on. और अगर हम इसी को देखें तो ये हमारे पास एक और हमारे पास इसका आर्किटेक्चर अवेलेबल है जिसमें भी वही चीज़ें अवेलेबल हैं, बट जनरली अगर हम इसको प्रेफर करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है ना. तो मैं इसके आर्किटेक्चर को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा. और इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने स्लाइड्स में आगे मेंशन किया हुआ है और मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा उसमें आपको उसके बारे में बताता रहूँगा. नाउ फर्स्ट वी हैव पोर्ट 0. पोर्ट 0 is a very simple input output port. Mainly it is used for analog input when we are using a single chip mode, but when port 0 is used as a generally it is used for multiplex and multi-channel analog input signal to sample and hold circuit and ADC analog to digital converters, whereas the port 1 is also a 8-bit port, but it is using for input output in a single chip mode. But when we are using in extended mode, then it behaves like a quasi bidirectional port, and it behaves for enabling or disabling different operations. Like when it is used in extended mode, the pin P1.5 and P1.7 are used to PTS, पेरिफेरल ट्रांजैक्शन सर्वर. जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस इससे इंटरफेस होती हैं उनके लिए ये क्लॉक्स को प्रोवाइड करने का काम करती हैं. उनसे जो कन्वर्सेशन परफॉर्म हो रहा है उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए ये पिन P1.5 टू P1.7 यूज़ करी जाती है. नाउ अदर देन
मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एज अ DMA ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर देन P1.3 एंड P1.4 यूज फॉर PWM1 एंड PWM2 विच इज़ अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। ये जनरली हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अगर मैं बात करता हूँ पोर्ट 2 की, तो पोर्ट 2 इज़ अ जनरल पर्पस बार डायरेक्शनल पोर्ट। In extended mode operation, it gives different functionality like P2.5 pin is used for pulse width modulation 0, P2.3 and P2.4 are used as a inputs for T1 clock and T2 clock and T2 reset signal for timer 2। मतलब जो हमारा टाइमर 2 है, जो कि हमारा 16 बिट टाइमर रजिस्टर होता है, उसको कि क्लॉक को इनेबल करने के लिए एज वेल एज उसको रीसेट परफॉर्म कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ P2.2 इज़ यूज फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। इट सपोर्ट्स 18 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, वो मैं आगे की स्लाइड में डिस्कस करूँगा। नाउ P2.0 एंड P2.1 आर यूज्ड एज डेटा एंड क्लॉक synchronous in a serial communication mode. When we are using in a asynchronous communication mode, they are used like TXD and RXD pin, serial transmit data and serial receive data. So ये तो पोर्ट 2 तक हो गया। नाउ P3 एंड P4 जो हमारे पोर्ट्स हैं, ये हमारे आउटसाइड SFR रेंज के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं, और इसकी जो रेंज होती है हमारे पोर्ट 3 की, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1FFEH से स्टार्ट होती है, और पोर्ट 4 के लिए ये 1FFFH होती है। ना ये इसके एड्रेस हैं जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में, मतलब ये अवेलेबल हैं जब हम डायरेक्ट एड्रेसिंग परफॉर्म कराते हैं और हमें पोर्ट 3 या पोर्ट 4 को पे कोई डेटा सेंड करना है, तो हम डायरेक्टली इन एड्रेसेस को भी यूज़ करके वहाँ पे हमको इनको एड्रेस कर सकते हैं। नाउ अगर मैं पोर्ट 3 की बात कर रहा हूँ, तो जब हम एक्सटेंडेड मोड में इसको यूज़ कर रहे हैं, देन इट कैरीज AD0 to AD7 बिट्स, मतलब लोअर एड्रेस एंड डेटा के लिए ये पोर्ट यूज़ किया जाता है। व्हेन वी आर यूजिंग पोर्ट 4, देन इन अ एक्सटेंडेड मोड, देन इट कैरीज AD8 to AD15, मतलब ये हायर ऑर्डर के एड्रेस एंड डेटा को इनेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। नाउ दिस इज वी आर हैविंग HSO HSI विच इज अवर हाई स्पीड आउटपुट कंट्रोल सर्किट एंड हाई स्पीड इनपुट कंट्रोल सर्किट्स। जनरली ये जो हैं ये हमारे टाइमर्स के साथ में यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम HSI जो है वो यूज़ किया जाता है टाइमर 1 के साथ में, हमारे टाइमर 2 को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉरी टाइमर 1 के लिए नहीं, टाइमर 2 के लिए है। इसका फंक्शन और जो इसके ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ना हियर वी आर हैविंग वॉचडॉग टाइमर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू नो बाय वॉचडॉग टाइमर, ये क्या है, मतलब क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? हमारे पास ऑलरेडी 2 16 बिट टाइमर्स हैं, पर हम ये वॉचडॉग टाइमर क्यों यूज़ कर रहे हैं? जनरली इन पर्सनल कंप्यूटर्स, like when we are having a condition, our computer gone in a hang mode, उससे हम कोई काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारा स्क्रीन हैंग हो गया है ना। अब उसमें हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग द फंक्शन कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, है ना। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को हम प्रेस करेंगे, हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, हम वहाँ से जाके एंड टास्क परफॉर्म कर देंगे। बट सॉरी जब मैं बात करता हूँ हमारे एम्बेडेड प्रोसेसर्स की, जहाँ पे हम किसी डिवाइस को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर हमने माइक्रोवेव के लिए यूज़ किया है और हमारा माइक्रो कंट्रोलर कोई हैंग मोड में चला गया। अब वो अगर हैंग मोड में है, मतलब क्या, उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन तो है नहीं है कि हम कंट्रोल और डिलीट प्रेस करके उसको वापस से हैंग मोड से निकाल लें, नहीं है ना। तो उस कंडीशन में ये वॉचडॉग टाइमर जो रहता है, ये फ्यू सेकंड्स के बाद, इफ़
it founds our microcontroller is in hanging mode, then automatically it resets all the functionality and gone into a safe mode. सेफ मोड में हमें ले जाने के लिए जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, डिवाइस को सेफ मोड में स्विच कराने के लिए हम वॉचडॉग टाइमर को यूज करते हैं. नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके पास ऑन चिप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है. सैंपल एंड होल्ड सर्किट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ना. और इसके पास जो यहाँ पे ये मक्स लैच कंट्रोल दिख रहा है आपको, BIUMAR, ये हमारा यहाँ से हम मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करा रहे होते हैं. हमारे मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करा रहा हूँ मतलब यहाँ पे जो भी हमारा A0 to A7 है या D0 to D7 है या D0 to D15 को इनेबल करना है, A8 to A15 को इनेबल करना है, तो उसके लिए जो भी बस इंटरफेस यूनिट है, मल्टीप्लेक्सर है, इन सब चीज़ों को हमने कहाँ पे टुगेदरली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इनके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर रहे हैं ताकि जो हमारा पोर्ट P3 और पोर्ट P4 हैं वो हम किस मोड में हमें उनको यूज़ करना है. मतलब अगर हम डायरेक्टली इनको 16 बिट को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं तब उसके लिए इनेबल कर सकते हैं. देखिए यहाँ से हमने पिन भी इससे कनेक्ट करके रखा हुआ है ना. और अगर हमको इनको सिंपल 88 बिट में यूज़ करना तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. सॉरी. नाउ अदर देन दीज वी आर हैविंग IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये हमारे इसके पास फैसिलिटी होती है लाइक हमारे 8086 में जिस तरीके से हमारे पास 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये 4 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू अवेलेबल होता है. मतलब ये 4 इंस्ट्रक्शन को होल्ड करवा सकता है. नाउ IDs आर इंस्ट्रक्शन डिकोडर. इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये हमारे जो भी अप्रोप्रिएट सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं उनके थ्रू जो भी सिक्वेंशियल सर्किट है उसको इनेबल करता हुआ हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आए हैं उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करता है. नाउ यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल है. इंटरप्ट कंट्रोल हमारे जो 18 इंटरप्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, उसमें 3 जो हैं वो नॉन मास्केबल कैटेगरी के होते हैं, बाकी 15 जो होते हैं वो मास्केबल कैटेगरी के वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं. तो उनको इनेबल करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है. PTS इज़ अ पेरिफेरल ट्रांजैक्शन सर्वर, है ना. ये जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हम इनको यूज़ कर रहे हैं उनके से किस टाइप से इंटरेक्ट करवाना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ ADB इज़ अ एड्रेस वैलिड. एड्रेस वैलिड ये जो है पिन, ये हमारे जो हम एक्सटर्नल एड्रेस को इनेबल करते हैं रीडिंग के लिए तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. और ये हमारे इसको हम यूज़ किसके थ्रू करेंगे, पोर्ट 3 और पोर्ट 4 के थ्रू यूज़ किया जाएगा. एक्टिव लो है मतलब जब हम 0 इनपुट देंगे तो ये एक्सटर्नल एड्रेस के लिए इनेबल होगा. अगर हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं इट मीन्स दैट वी आर इनेबलिंग आवर डेटा, है ना. नाउ RD इज़ यूज फॉर रीड, है ना. रीडिंग मोड में जब हम स्विच करेंगे तब हम इसको एक्टिव मतलब जब हम एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को रीड परफॉर्म करा रहे हैं तब हम यहाँ पे इनपुट 0 दे रहे होते हैं. यहाँ पे देखिए यहाँ पे, है ना. और इसके अलावा WR और WRH जो है ना, ये हमारे राइट लोअर बाइट ऑफ अ 16 बिट वर्ड एंड राइट हायर बाइट ऑफ अ 16 बिट वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है. ये एक्चुअली हम एक्सटर्नल डेटा मेमोरी को जब राइट परफॉर्म करा रहे हैं तब यूज़ किया जा रहा है. और जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों पे बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये एक्टिव लो है. 0 जब हम इन पे इनपुट देंगे तब काम करेंगे. ये जनरली यूज एज अ एक्सटर्नल इनेबल, है ना. हमारे पोर्ट 3 पोर्ट 4 को जब हम यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल बस को एक्सेस करने के लिए एक्सपेंडेड मोड में, तब हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम 0 इनपुट देते हैं. और अगर हमने इस पर 1 दे के रखा है इट मीन्स ये क्या करेगा हमारा, ये हमारे को हमारे 80196 को सिंगल चिप मोड में ही यूज़ करवाएगा. मतलब हम यहाँ से एक्सटेंडेड मोड और जैसा कि हम मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड यूज़ करते थे ना 8086 में, उसी तरीके से ये भी हमें इसको सिंगल चिप मोड में और एक्सटेंडेड मोड में यूज़ करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है. जब हम एक्सटेंडेड मोड में यूज़ करना है तो 0 इनपुट देते हैं
और जब सिंगल चिप मोड में यूज़ करना है तो हम 1 देते हैं। बस बिट जो है ये हमारे एक्सटर्नल डेटा बस को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, 8 बिट और 16 बिट में यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, है ना, फैच साइकिल की ड्यूरेशन में। यहाँ से जो कंट्रोल सीक्वेंस एंड लॉजिक सर्किट में अदर सर्किट्स हैं लाइक रीसेट, यहाँ से हम रीसेट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। आईएनटी इंटरप्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए। XTL1 एंड XTL2 जो है हमारे ऑसिलेटर को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा VDD और VSS जो हैं ये हमारे पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सॉरी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये PSW है, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड रजिस्टर है, ये 16 बिट रजिस्टर होता है। SP है, स्टैक पॉइंटर है, ये भी हमारा 16 बिट है, जिसको हम SPL और SPH के फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। और SPL और SPH जो हैं इनके एड्रेस भी मतलब डायरेक्टली गिवन होते हैं। ये 18H और 19H जो है इसका SFR रेंज में गिवन किया हुआ है। देखिए ये SPH एंड SPL है ना, ये गिवन है। और जो हमारी SFR रेंज है वो 00H to 0017H के लिए गिवन है। यहाँ पे रैम जो है वो भी हमारा यहाँ पे 232 बाइट का गिवन है, जिसकी रेंज 00FFH to 1FFEH, मतलब ये जो पूरा रैम है ये 232 बाइट का है। अब अगर हम 8051 में बात करें तो वहाँ पे रेंज क्या होती थी, 00H to FFH होती थी, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 232 बाइट की बात कर रहे हैं ना, तो ये रेंज कहाँ से है, ये मतलब 00FH to 1FFEH तक है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बाकी इंटरप्ट वेक्टर्स जो हैं जैसा मैंने बात करी तो उनकी रेंज 2050H से 203FH होती है ना। ये रोम में जनरली लिखे जाते हैं, है ना। और ये जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल वेक्टर्स हैं पेरिफेरल ट्रांजिशन के लिए वो यहाँ पे रोम में मेंशन है ना। तो ये जो है कंप्लीट हमारा एक इसका आर्किटेक्चर का पूरा एनालिसिस है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 16 बिट प्रोग्राम काउंटर है जो कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या अभी जो करंट एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जा रहा है उसके एड्रेस को अवेलेबल करवाने का काम करता है ना। तो फ्रेंड्स इसके आगे मैं आपसे बात करता हूँ लाइक ये जो मैंने बात कही आपसे कि हमारा पास 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, इट परफॉर्म 16 बिट प्रोसेसिंग। प्रिंसटन आर्किटेक्चर मैंने आपको बता ही दिया है। रजिस्टर्स बेस्ड अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। 16 बिट स्टैक पॉइंटर होता है। बस इंटरफेस यूनिट और मल्टीप्लेक्सर यूनिट अवेलेबल होती है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। और ये पोर्ट्स के बारे में ADC PWM के बारे में भी बात हो गई है ना। तो ये उसके जनरल जो मैंने बात कही है उन्हीं को मैंने पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है। ये भी कुछ यहाँ पे मैंने डेटा लिखा हुआ है लाइक यहाँ से ये रेंज समझाई हुई है। ये पोर्ट 3 के लिए बताया हुआ AD0 to AD7 तक और P4 AD8 to AD15 होता है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ AD0। जनरली जब हम इनको कंबाइंडली यूज़ करके 16 बिट को इनेबल कर रहे हैं तब हम यूज़ करते हैं ना। और ऑपरेशन फीचर्स की जो मैंने बात करी ये 16 बिट ऑपरेशन इन बंस इंस्ट्रक्शन साइकिल में परफॉर्म करता है। डेटा और कोड मेमोरी इसके पास सेपरेटली अवेलेबल होती है। ADC और PWM अवेलेबल होता है, ठीक है। वॉच डॉग टाइमर जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है जिससे हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर को हैंगिंग मोड से स्विच करवा सकते हैं, है ना। इसके अलावा PTS है, पेरिफेरल ट्रांजिशन सर्वर है, ठीक। ये जो है ये हमारे एक्चुअली हम जो रैम है इसको दो मोड में हॉरिजॉन्टल विंडो के फॉर्म में और वर्टिकल विंडो के फॉर्म में यूज़ करते हैं, है ना। बाकी इसकी जो पूरी रेंज है वो यहाँ पे बताई गई है, आप इजीली देख सकते हैं, है ना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यही उस रेंज को मैंने यहाँ पे अलग से पूरा डिफाइन किया हुआ है, ठीक। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल विंडो के लिए ये पूरा रेंज मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये अच्छे से आपको दिख जाएगा, है ना। और फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट तो ये जो है
ये, हाँ, ये जो मैंने पोर्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन आपको बताया हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। नाउ दिस इज़ अ विंडो सिलेक्शन रजिस्टर, है ना। विंडो सिलेक्शन रजिस्टर जो है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जो मैंने आगे आपको अभी रैम की जो डिफरेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विंडो के बारे में बताया, ये उसी को डिफाइन कर रहा है। एक्चुअली जब हम इस विंडो में यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, ये जो 4 बिट्स दिख रहे हैं लोअर निबल जो है हमारा, या जो स्टार्टिंग D0 to D3 बिट है, इससे हम हॉरिजॉन्टल जो हमारी विंडो है उसको एक्सेस करवाते हैं, उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना। और जो हमारी वर्टिकल विंडो है उसको हम फ्रॉम D4, D5 एंड D6 जो बिट है इसको यूज़ किया जाता है उसको इनेबल करने के लिए। और जब हम, अगर हमें चाहते हैं कि हम 4 वर्टिकल विंडो को इनेबल करें, तो हम यहाँ पे मतलब D4 बिट पे इसको सेट कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि 8 वर्टिकल विंडो यूज़ करना है तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि 16 वर्टिकल विंडो यूज़ करें तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं D6 बिट पे ना। अगर हमारा वर्टिकल विंडो सिलेक्टेड है, इट मीन्स हम डायरेक्टली हमारे इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट करवा सकते हैं, है ना। नाउ दिस इज इन विंडो जो है हमारी विंडो के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है ना। ये डिफरेंट बाइट्स के फॉर्म में, 32 बाइट्स के फॉर्म में विंडो 0 to विंडो 15 तक का बताया हुआ है ना। ये 16 विंडो के लिए हो गया, ये 8 विंडो के लिए हो गया, ये 4 विंडो के लिए हो गया, है ना। तो जो उसकी रेंज देख लीजिए, और है ना, जब हम अगर हम रैम को, अगर हम विंडो के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, वर्टिकल विंडो के फॉर्म में ना, तो अगर हमने 16 विंडो को इनेबल किया तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 32 बाइट्स के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया जाएगा। अगर हम 8 विंडो के फॉर्म में यूज़ करवा रहे हैं तो फिर इसको 64 बाइट्स के फॉर्म में यूज़ की मतलब ब्रेक कर देंगे। और अगर हम 4 विंडो के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं देन इट ब्रेक इनटू 128 बाइट्स, है ना। 128 बाइट्स के फॉर्म में इस टाइप से ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 80196 डिफाइन दी रैम इन डिफरेंट विंडोज़, है ना। तो आप डिफाइन कर सकते हो, जैसा 8051 में उसके रैम को हमने जनरल पर्पस और बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल के फॉर्म में ब्रेक किया हुआ था, तो इसको भी आप इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं ना। HSI और HSO के बारे में हम देख लेते हैं। तो T1 जो है हमारा जो 16 बिट फ्री रनिंग टाइमर है ना। और ये जो है इसको हम स्टॉप नहीं करते हैं, मतलब ये कंटिन्यूसली रनिंग मोड में होता है, इसको रीसेट नहीं किया जाता है। और ये जनरली हमें एक्यूरेट टाइम डिलेज को प्रोवाइड करवा रहा होता है, एज वेल एज ये जो है हमें फास्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड प्रोवाइड करा रहा होता है। फीफो जो है वो हम जनरली कैप्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को, है ना। और HSO जो है हमारा वो रियरली यूज़ किया जाता है ना। और इसके लिए अगर हम देख लें तो HSO जो है मेनली जब हम इसको कंपेयर कराते हैं एंट्रीज फॉर कैम तब यूज़ किया जाता है। और इसकी बात अगर हम करें तो 4 डिफरेंट इवेंट को एक साथ कैप्चर करने की कैपेबिलिटी ये हमें प्रोवाइड करा रहा होता है। अदर देन देयर आर 4 सॉफ्टवेयर टाइमर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, है ना। तो इसको हम जब ओवरफ्लो सॉफ्टवेयर टाइमर्स आर इंडिकेटेड बाय ISO 1.0 ISO 1.3, है ना। ये जनरली जब हार्डवेयर काउंटर्स आर जब यूज़ नहीं हो रहे होते हैं तब हम मेमोरी लोकेशंस को के लिए हम इस जो मोड है हमारा HSO जो है हाई स्पीड आउटपुट मोड है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। नाउ इंटरप्ट्स की हम बात कर लें तो जैसा मैंने आपको बताया था 18 ग्रुप्स में हम इंटरप्ट्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। 3 NMI ग्रुप के होते हैं, 15 जनरल पर्पस इंटरप्ट ग्रुप के हैं। और इनकी जो प्रायोरिटी है उसमें INT 0 इज एन हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है और INT 17 जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे इसको रखा जाता है। इसकी वेक्टर एरिया जो रेंज है वो 200H से स्टार्ट होकर 2014H और 203H 0H to 203FH के लिए
अवेलेबल होती है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हिसाब से हमने इनको असाइन किया हुआ है। लाइक एक्सटर्नल SW हम जब यूज़ कर रहे हैं, HSI को यूज़ कर रहे हैं तो ग्रुप 1 में रखा है ना। टाइमर टू ओवरफ्लो है तो ग्रुप 3 में है। टाइमर टू T2 कैप्चर के लिए अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप 4 में, इसी तरीके से एंड सो ऑन, है ना। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एड्रेसिंग मोड्स की बात करूँ तो ये हमें इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस टाइप से हमें प्रोवाइड करता है। इम्प्लिसिट है, आप जैसे एक और चीज़ देख लें, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जैसे हम 8051 में हैश साइन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हैश साइन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिफाइन कर रहा है ये एक इनपुट वैल्यू है ना। और डायरेक्ट एड्रेसिंग की मोड में की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे डायरेक्टली या तो हम जो हमारा पोर्ट है उसको वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि पोर्ट 0 यहाँ पे दे दिया, लोड करवा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे लोड AX जो है हमारा SI है ना, सोर्स इंडेक्स जो है हमारा, यहाँ पे इसमें हमारा जो एड्रेस है इंडेक्स रजिस्टर में एक एड्रेस अवेलेबल होगा, पहले उस लोकेशन को फैच करेंगे, देन वहाँ से डेटा को हम क्या कर रहे हैं, AX में करा रहे हैं, है ना। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात होगी, है ना। इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ 80196 में, तो मतलब ये जो हमारा 80196 है ये 4 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है ना। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन मोड्स, इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन है, कॉल जंप टाइप, है ना। मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन में रीसेट और ट्रैप को यूज़ किया जाता है। ट्रैप जनरली हम सिंगल एग्जीक्यूशन मोड में जब हम स्विच करवाते हैं तब हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑल अबाउट 80196, इसमें हमने उसके आर्किटेक्चर, उसके रैम एड्रेस, रैम के टाइप को, उसके फीचर्स को, उसके इंस्ट्रक्शंस को और उसके जो एड्रेसिंग मोड्स है उन सबको देखा हुआ है। तो ये काफ़ी है। Thank you for watching and give your valuable suggestion for improving my videos. Thank you friends, and don't forget like my videos. Please like it and subscribe. Also share with other friends. Thank you.